1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, हेब्रियोस 8 चैप्टर, जरमिया 52 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय, जरमिया की भविष्यवाणी की पुस्तक 52 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। हम जब पढ़ रहे हैं तेरा वचन खुदा, परमेश्वर का प्रकाशन, उसकी पहचान हमारे अंदर बढ़ती जाती है, ऐसा तेरा वचन कहता है। इसके लिए हम तुझसे विनती करते हैं पवित्र आत्मा कि तेरी पहचान में हम बढ़ते जाने के लिए, परमेश्वर के संबंधित बातों में हम और ज़्यादा विस्तारित हो जाने के लिए हमारी मदद कर और हमारी सहायता कर। तेरे अलावा हम ये वर्णन परमेश्वर के समझ नहीं सकते हैं, उसके चरित्र को हम समझ नहीं सकते हैं। हमारी मदद कर, हमें तेरे द्वारा ही वचन समझना हो सकता है। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे हर गलती गुनाह हम माफ़ कर और हमें तेरे वचन में पूर्ण रूप से सिद्धता के मार्ग पर लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। Hebrews chapter 8, the excellency of Christ's priesthood. First verse से पढ़ेंगे। Now, of the things which we have spoken, this is the sum. We have such an high priest who is set on the right hand of the throne of the majesty in the heavens, a minister of the sanctuary and of the true tabernacle which the Lord pitched and not man. For every high priest is ordained to offer gifts and sacrifices. Wherefore, it is of necessity that this man have somewhat also to offer. For if he were on earth, he should not be a priest, saying that there are priests that offer gifts according to the law, who serve unto the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle. For see, saith he that thou make all things according to the pattern shewed to thee in the mount, but now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises. For if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second. For finding fault with them, he saith, Behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my laws into their mind and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. And they shall not teach every man his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me, from the least to the greatest. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. In that he saith, a new covenant he hath made, the first old.
Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. हम हिंदी में पढ़ेंगे इन्हीं वचनों को BSI बाइबल में से। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय पहले वचन से। यीशु हमारा महायाजक, 8 अध्याय पहले वचन से। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। इस कारण आवश्यक है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक न होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो है, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। उसे जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। तो आपको समझ में आया अभी ये 6 वचन क्या बताता है। याजक पद पर परमेश्वर ने ठहराना, उसके पीछे एक वाचा का कारण रहता है। ओके, उस वाचा के बीच में खड़ा रहने वाला जो होता है वो याजक है। वाचा 2 लोगों में बांधी जाती है। ओके, जो भी वाचा बांधता है उसके बीच में एक जो खड़ा हो गया है उसको परमेश्वर याजक पद कह रहा है। ठीक है, तो याजक पद वाचा के मध्यस्थ ठहरने के लिए रहता है और उसके वाचा के साथ साथ प्रतिज्ञाएं भी रहती है। ओके, तो ये बीच में याजक जो रहता है वो आप समझिए उसके काम का, उसके पद का इम्पोर्टेंस परमेश्वर के मंदिर में, भवन में क्या रहता था। ओके, पर उन याजकों से बढ़कर याजक सेवा करने वाले बनते हैं। ओके, यीशु को मिली, यानी यीशु सेवा कर रहा है याजक के पद के ऊपर से, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। ओके, वाचा और फिर प्रतिज्ञाएं दोनों इकट्ठे चलते हैं। ठीक है, और उसके लिए याजक का सेवा होना परमेश्वर को चाहिए था, तो उनसे भी बढ़कर यीशु को सेवा मिली है। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर न ढूंढा जाता। यानी जो पृथ्वी के ऊपर याजक पद लेवियों को दिया गया था वो मनुष्य रूप में यहाँ पर चलाया जा रहा था, और उसके अंदर फिर भी इतनी सामर्थ्य यानी इतना पवित्रपन, निर्दोषपन नहीं था। इसकी वजह से उनको और एक परमेश्वर के राज्य का एक सेवा करने वाला याजक प्रभु यीशु को ठहराया गया था। ओके, तो दूसरों के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। तो वाचा कब बंधी और याजक कब शुरू हुए? जब मिस्र देश से
इसराइलियों को निकाला गया था। ओके, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली, प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों में लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। अब ध्यान दीजिए, मैंने बोला था ना आपको कि कभी भी पाप ये शब्द विश्वासियों के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, क्योंकि यहाँ देखिए ओपनली दिखा है 12 वचन में, उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। अब अशुद्ध होना इट्स ओके, बोल सकते हैं अशुद्ध हुए, दूषित हुए, ओके, लेकिन पाप हमारे ऊपर ये नाम नहीं लगता है। ओके, पाप ये शब्द हमारे ऊपर नहीं बैठता है। ओके, अगर हम फिर भी पाप ये शब्द विश्वासियों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे ना तो वो इल्लीगल होता है, उसके लिए कोई ग्राउंड नहीं है, कोई कानूनी जगह उस नाम को विश्वासियों के ऊपर नहीं है। ओके, तो आपको समझ में आया शैतान किसका पीछा करता है? पाप का पीछा करता है। जब पाप ही आपका नहीं रहा तो शैतान का पीछा करना व्यर्थ जाता है, अगर ये बात आपको मालूम रहे तो। ओके, उसका आपके पीछे आने का रीज़न एक ही है, पाप। ओके, तो आपको वो अशुद्ध करने के लिए आता है, पाप करवाने के लिए नहीं आता है, आपको अशुद्ध करने के लिए आता है। अशुद्ध करने से पवित्र आत्मा का जो काम है वो ढीला पड़ जाता है। अशुद्धता में पवित्र आत्मा काम नहीं करता है, इसके लिए वो आपकी मर्जी को चाहता है शैतान कि आप अशुद्ध होने के लिए तैयार रहे। ओके, आप अशुद्ध कामों के लिए हाँ कर दे। जैसे ही आप अशुद्ध कामों में हाँ कर देते या अशुद्ध होने के लिए आप बिल्कुल पीछे नहीं हटते, तो उस समय फिर शैतान बोलता है पवित्र आत्मा को, अब ये खुद अपनी मर्जी से अशुद्ध होने की इच्छा रखा है, हमें सौंप दिया है, तो अब हमारा कानूनी हक बनता है उसके ऊपर अशुद्धता को लाने का। ओके, और जब अशुद्धता लाता है उसके साथ साथ फिर वो दूसरे और दुष्ट आत्माओं को भी लाता है। ओके, इसके लिए हमको अशुद्ध जीवन से दूर भागना है, हमको अशुद्ध नहीं होना है। ओके, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा। अब अधर्म की बातें यहाँ पर बोला है, परमेश्वर कहता है अधर्म के बारे में मैं दयावंत रहूँगा, ठीक है, लेकिन पाप के बारे में उसने ये बोला है कि मैं तो उसे भूल ही जाऊंगा, मैं तो उसको याद भी नहीं रखूंगा। ठीक है, 13 वचन देखिए, नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और अच्छा, अगर आप अशुद्ध हो गए तो क्या करेंगे? यीशु मसीह के लहू से आपको शुद्ध होने का रास्ता है। ओके, पुरानी और जीर्ण हो जाती है, उसका मिट जाना अनिवार्य है। ठीक है, तो पुरानी वाचा के अनुसार जो व्यवस्था थी वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था थी। पुरानी बातों में जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के नीचे अब हम नहीं हैं, तो हम किसी को अगर विश्वासी है तो हम ये बोल सकते हैं कि अशुद्ध मत हो। ओके, अशुद्ध मत हो, दूषित मत कर अपने आप को, हाँ, क्योंकि तो परमेश्वर का मंदिर है। ओके, परमेश्वर के मंदिर में सब कुछ शुद्धता के साथ जीना पड़ता है। हम ये सिखा सकते हैं लोगों को जो विश्वास जीवन में मौजूद है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं पाप मत कर, पाप से दूर हो जा, ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पाप का तो उनके ऊपर कोई दाग है ही नहीं।
ओके, हाँ, अशुद्धता से दूर हो जा, इस प्रकार के शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो पाप का नियम था उसके नियम के नीचे रहकर हम अपने आप को पापी नहीं कहना है। ओके, पाप का नियम जो था वो नियम का रिजल्ट जो निकलता था वो था पनिशमेंट्स। ठीक है, तो पनिशमेंट्स, तो पाप की पनिशमेंट यीशु मसीह के शरीर के ऊपर डाल दी गई। परमेश्वर ने जो नियम दिया था, पाप का नियम था कि उसको पनिश किया जाएगा, जो पाप करेगा उसको पनिश किया जाएगा, तो वो नियम के अनुसार पनिशमेंट जो रहता है वो यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया गया है। ओके, अब शैतान आपके ऊपर कैसे हमले करता है? वो आपके अज्ञानता से हमला करता है। ओके, अगर आपको मालूम पड़ गया कि मेरे से कुछ गलत हो गया है, या मैंने पाप के लिस्ट में मुझे मालूम था ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए और इसका पनिशमेंट ऐसा ऐसा आता है, लेकिन वो व्यवस्था तो मेरे ऊपर अभी नहीं है, तो मेरे से अगर ऐसा कुछ हुआ है तो अब मैंने क्या करना है? अपने आप को शुद्ध करने का रास्ता चलना है। ओके, प्रभु यीशु के लहू को हमने बोलना है, वो वचन पढ़ना है, वचनों से हमें पानी की तरह धोया जाता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक वचनों के कारण हम पर बरसने लगता है। उसके आग से जो कुछ भी अशुद्धता है वो जल कर भस्म हो जाता है और जो शुद्धता है वह निखर कर आता है। ओके, तो आपको परमेश्वर के प्रार्थना, उपवास, बाइबल रीडिंग, कबूली करना, ये सब, और प्रभु भोज, सहभागिता, दशमांश देना, ओके, परमेश्वर के भवन के कामों में देना, कोई परमेश्वर के दया के काम करना, कुछ भी प्रकार के ऐसा जो रहता है वो हमें शुद्धता का रास्ता देता है। ओके, और शुद्धता का रास्ता चलते चलते परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा। ओके, अशुद्धता में जो भी आपके द्वारा अधर्म के समान कुछ हो गया होगा तो आपको परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे विषय में ज़्यादा कठोर व्यवहार नहीं करूँगा, मैं दया को बरताऊँगा तुम्हारे लिए। समझ में आया? तो हम परमेश्वर के दया के आसन से हियाव के साथ दया को ले पाएंगे, ये रास्ता परमेश्वर ने हमको दिया है। ओके, लेकिन पौलुस ने ये भी बोला है कि अगर बारंबार तुम यही करते रहोगे, ओके, माफ़ी मांगना फिर माफ़ हो जाना, फिर माफ़ी मांगना फिर माफ़ हो जाना, फिर माफ़ी मांगना फिर माफ़ हो जाना, अगर यही करते रहेंगे तो तुम उन्नति नहीं कर पाओगे। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में, परमेश्वर के अलग अलग नामों से इस्राएली संतान परमेश्वर के चरित्र को समझते थे। यहोवा निसी, यहोवा राफा, यहोवा यिरे, ऐसे नामों से वो परमेश्वर के चरित्र को अपने लिए पहचान के लिए रखा करते थे। ठीक है, तो परमेश्वर उतना ही नहीं है, परमेश्वर वचनों के अंदर भरा हुआ है। अगर हम सिर्फ पाप और सिर्फ अशुद्धता, अधर्म और पापों और माफ़ी और फिर माफ़ हो जाना और फिर माफ़ी और फिर माफ़ हो जाना, इसी के बीच में पड़े रहेंगे तो बाकी वर्णन तो हम परमेश्वर के सीख नहीं पाएंगे। ओके, और इसके लिए आपके ऊपर शैतान आक्रमण करता है क्योंकि आपके पास परमेश्वर की और ज़्यादा जानकारी नहीं है। जिस रास्ते से शैतान आक्रमण करता है उस रास्ते के बारे में आपको उसके रास्ते नहीं सीखना है, लेकिन परमेश्वर उसके बारे में क्या बोलता है ये आपको मालूम होना चाहिए, और ये बातें परमेश्वर उसके साथ क्या कर सकता है ये आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि ये मालूम नहीं है, इसके लिए आप शैतान के आक्रमणों के नीचे दबे पड़े रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। जब आप ज्ञान में बढ़ते जाएंगे तो आप नाश नहीं होंगे, आपका फाइनेंस नाश नहीं होगा, आपका जीवन नाश नहीं होगा, आपका चाल चलन नाश नहीं होगा, आपका हर एक चीज़ परमेश्वर के सामने ऊंचा रहेगा और परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमारे अशुद्ध होने से हमने बचना है, पाप से नहीं डरना है, पाप के ऊपर हमने प्रभुता करना है, पाप को पैरों के नीचे कुचल देना है। पाप के अवसर अशुद्धता के द्वारा हम तक पहुंचते हैं, हमने उसे लताड़ देना है, मारना है, कुचलना है और उसे भगा देना है। ये हमारा अधिकार है। हालेलुया। क्योंकि हम पवित्र जाति है,
पाप का अधिकार हम पर चलने नहीं देना है, पाप का राज्य हम पर चलने नहीं देना है। हालेलुया। ये एरिया ऑफ लाइफ हम परमेश्वर के लिए फाइट करते हैं। हाँ, परमेश्वर के लिए हम शुद्ध रहने के लिए, हम अपने आप को शुद्ध जीवन के लिए पूरी तैयारी के साथ शैतान का सामना करते हैं और उसे लौटा देते हैं, पलटा देते हैं, धकेल देते, गिरा देते, हमारे तक उसको रुकने नहीं देते हैं। हाँ, हम छटपटा कर उसको गिरा देते, निकल जाते हैं, बाजू में हट जाते हैं, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वरदान है, हमें शुद्ध रहना है। उन वरदानों के अनुसार हमारा जीवन परमेश्वर का मंदिर होते हुए इस पृथ्वी के ऊपर जीना है। आमीन। तो हम परमेश्वर के लिए ये सब करते हैं, ना कि हम अपने स्वार्थ के लिए। हालेलुया। ये वचन हमारे लिए परमेश्वर आशीषित करे। इन वचनों में से पवित्र आत्मा जो भेद तूने हमें सिखाया है, उस भेद को हम कभी भूलने ना पाए। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता कि हमें पवित्र आत्मा तो फिट एंड फिक्स कर, इन वचनों में हमें ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।